students, once more good morning, and we are going to start our science session. In today's session we will discuss the importance of pH. In previous session we have learned the pH and more how we can determine the pH. Because of pH we can determine the nature of substance, which one is the acidic or basic or neutral. In today's session we will discuss importance of pH, and under the importance of pH, first, existence of the living being. We all are living beings in our earth. Whatever we do, that is for the living beings. Living beings are categorized in animal and plant. Then existence of living being. Importance of pH for the existence of living being. The physiological reaction. Reaction which take place inside of our body. Our body is physiological body. Then physiological reaction take place in human body. We are a human beings, and human body in the range of 7 to 7.8. 7 pH indicates to the neutral and 7.8 pH indicates to the basic. Other living beings are not able to bear more changes. Other living beings means like fish, means animal who have no power to more think. Other living beings are not able to bear more change in pH. Example, when the water of acid rain mix, whenever the acid rain take place, then you have many time see that the leaves of plant get to be dried or damaged. आपने देखा होगा कि एसिड रेन्स होता है, तो एसिड रेन यदि जमीन में हो जाती है तो वहां पर जो ग्रास है ना वो जल जाता है, मतलब सूख जाता है. पत्तों में हो जाता है. Acid rain take place over the leaves of a tree, then it get to be dried up. तो वो पत्ता भी सूख जाता है, जल जाता है, क्योंकि उसका जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिलस, वो कलर एसिड के कारण डल हो जाता है. एसिड रेन जब भी जहां भी होता है उसको डैमेज ही करता है, क्योंकि वो दैट इज डायरेक्टली चेंज टू द पीएच ऑफ सबस्टेंस. जिस सबस्टेंस के ऊपर, जिस मेटल के ऊपर गिरेगा उसका पीएच वो चेंज करता है. तो जब एसिड रेन सपोज करो किसी वाटर रिजर्वियर में हुआ, वाटर रिजर्वियर लाइक पॉन्ड में हो गया, डैम में हो गया, रिवर्स में हो गया, ऐसी जगह में एसिड रेन हुआ, तो वो एसिड रेन का पानी, एसिड रेन मींस रेन विथ एसिड, तो वो एसिड रेन का जो वाटर है दैट मिक्स विद द वाटर रिजर्वियर. वाटर रिजर्वियर जहां पर रिजर्वियर यानी जहां पर पानी कलेक्ट है, रुका हुआ है, उस वाटर रिजर्वियर में जो एक्वेटिक लाइफ है वो डेंजर में आ जाती है. डेंजर में क्यों आ जाती है? क्योंकि उस वाटर का पीएच चेंज हो जाता है. एंड व्हेन द pH of water get to be changed, definitely the life of aquatic vegetation as well as animals, जो aquatic vegetation है यानी जो बेस पानी में ग्रो होते हैं वो, और पानी में रहने वाले जो एनिमल्स है वो, उनका लाइफ रिस्क हो जाता है. रिस्क मतलब डेंजर में आ जाता है. द एक्सिस्टेंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ किंगडम एंड एक्वेटिक वेजिटेशन आर रिस्क. काफी रिस्क होता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि पीएच चेंज होने के कारण जितनी भी फिश है वो मर जाती है. that get to be died because the changes of pH into the reservoir of water. So therefore we should maintain the pH of reservoir. We should maintain means we cannot maintain directly,
but we can maintain environment, therefore pollutant will not increase in the atmosphere, and when pollutant will not increase in the atmosphere, then they will not convert into the acid. Therefore acid rain will not take place. Many things are under the risk because of acid rains. So the existence of aquatic life kingdom or vegetation are risk. This is the importance of pH under the existence of living beings. So one should be maintain the pH between required range. Second topic, importance of pH in digestion of food. That is one of the important topic. We know that stomach played an important role in the digestion of food. When we take food with the help, when we keep food stuff with the help of our hand into the mouth, then mouth secrete an enzyme called amylase, which makes a partial digestion of carbohydrate. After that, it enters through the food pipe or esophagus into the stomach. Stomach secrete HCl, hydrochloric acid. We know that stomach played important role in the digestion. Stomach store to the food. It mix food substance with the HCl. As the food enters the stomach, HCl acid secreted in the stomach. The pH of this acid, जो HCl पेट में से या स्टमक से निकलता है, उसका as the food enter into the HCl is secreted in the stomach, the pH of this acid changes between 1 and 3. 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में वो pH में चेंज लेता है, क्योंकि that is depend on the nature of food substance. Changing in pH of the acid depend on the food substance. What type of food we have taken? हमने किस प्रकार का फूड लिया है, मसालेदार लिया है, फैटी लिया है, ऑयली लिया, means there could be different type. Normal है. At this low value of pH, enzyme named pepsin, ये एंजाइम प्रोटीन्स के डाइजेशन में पेप्सिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बल्कि बहुत बड़ा रोल क्या है, पेप्सिन डाइजेस्ट टू द प्रोटीन, बिकम एक्टिव. जो फूड में प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्टिव होता है, वो HCl इसको एक्टिव करता है, पेप्सिन को. बिकम एक्टिव एंड हेल्पफुल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द फूड. प्रोटीन डाइजेस्ट इनटू अमीनो एसिड. Whenever we take food, जब भी अपने कोई ऐसा फूड लेते हैं लाइक फिश, एग, मीट एटसेट्रा, ये सभी जो फूड सब्सटेंस हम लेते हैं, एग, मीट, ये ऑयली होते हैं और इनमें अमाउंट ऑफ प्रोटीन का जो मात्रा है वो काफी ज्यादा होता है, फिश में भी, एग में भी और मीट में भी. प्रोटीन एंड फैट्स. तो HCl इज सेक्रेट मोर फॉर द डाइजेशन, जिसके इनको डाइजेस्ट करने के लिए, यानी इसमें जो अवेलेबल प्रोटीन्स है उसको डाइजेस्ट करने के लिए HCl का सेक्रेशन ज्यादा होता है. और उस HCl का सेक्रेशन जब ज्यादा होता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना है, किसको डाइजेस्ट करना है, इसको, फिश, एग और मीट को, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको पेप्सिन को एक्टिव करना होगा. तो पेप्सिन जब एक्टिव होगा उसके लिए HCl रोल प्ले करेगा. HCl यानी एक्टिव करता है पेप्सिन को, ज्यादा निकलता है. जब एसिड ज्यादा निकलता है, समटाइम्स देयर इज पेन और इरिटेशन इन द स्टमक, जिसके कारण पेट में कभी दर्द या कभी इरिटेशन यानी जलन ऐसा लगता है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं एसिडिटी. एसिडिटी है बीन इंक्रीज इनसाइड ऑफ आवर बॉडी. एसिडिटी बढ़ गई है और उसके उपचार के लिए, टू रेमेडी द एसिडिटी, वन शुड टेक एंटासिड सब्सटेंस. एसिडिटी को दूर करने के लिए हमें एंटासिड सब्सटेंस चाहिए. एंटासिड मींस दो सब्सटेंस टू रिमूव द एसिडिटी, जो हमारी बॉडी के एसिडिटी को क्या करे, दूर कर सके. उसके लिए
जनरल कॉमन लैंग्वेज में अपने बोलते हैं इनो ऑन एसिडिटी गॉन। इनो ऑन एसिडिटी गॉन, इनो इज ए पाउडर विच कंटेन्स अ बेकिंग पाउडर, जिसमें बेकिंग पाउडर होता है, सबस्टेंस लाइक बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस। ये पाउडर अपने पानी में डिजोल्व करके ले लेते हैं वाटर के साथ में, अथवा या और हमें टैबलेट ले सकते हैं, जिसको हम गैस की टैबलेट बोलते हैं ना, एसिडिटी रिमूव करने के लिए। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है AlOH होल थ्राइस, उसकी टैबलेट, या कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में को जब हम ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाता है CaCO और CO2। ठीक है, ये बेसिक नेचर का है। हमारे बॉडी के अंदर है क्या, एसिडिटी है, तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं ये सबस्टेंस, और जब वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो पेन या एरिएशन हो रहा है वो रुक जाता है या खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे हमें रिलीफ मिलता है। तो हम जनरली वी शुड टेक दोज फूड सबस्टेंस who not increase the amount of protein। हमें ऐसे सबस्टेंस लेने चाहिए जिसमें से प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा ना हो, जिससे एसिडिटी ना बढ़े। बट इफ समटाइम्स वी हैव टेकन, यदि कभी मैंने ले ही लिया चलो, तो उसके लिए मेरे पास में फिर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो सकता है जिससे एसिडिटी बढ़ सकती है, और एसिडिटी बढ़ने के कारण को रिमूव करने के लिए हमें ऐसे सबस्टेंस लेने चाहिए। Two more importance of pH in two more content, importance of pH in tooth decay and importance of pH in soil. Then in tooth decay, first we move toward the tooth. When the pH of inner side of mouth, मुंह के अंदर का pH is less than 5.5, means 5.5 से कम हो गया, यानी strong acidic में आ गया। The decay of teeth take place, तो teeth का जो teeth decay यानी जो layer है वो वीक पड़ती है और दांत झड़ने लगता है। Decay of teeth, the outer layer of teeth, teeth के बाहर की जो layer है वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। कैल्शियम फास्फेट एक हार्ड सबस्टेंस है जो वाटर में डिजॉल्व होता नहीं है। It does not dissolve in the water but get decayed when pH of inner side of mouth become less than 5.5। 5.5 से नीचे आएगी तो उसकी लेयर डिसॉल्व होने लगती है, यानी घुलने लगती है, और जब लेयर डिसॉल्व होगी तो दांत पतला होने लगेगा, है ना। उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होगा, और स्ट्रेंथ कम होगा तो अपने को खाने में, किसी चीज को चबाने में दर्द होगा। एसिड इज प्रोड्यूस्ड, एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है? एसिड इज प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। जब फूड हम अंदर डालते हैं तो डिकम्पोज होकर के दांतों में फंसा रह जाता है, फूड पार्टिकल्स दांतों में रह जाते हैं। एंड सैकेराइड्स बाय बैक्टीरिया इनसाइड द माउथ, फूड पार्टिकल और सैकेराइड्स मीठे सबस्टेंस, सैकेराइड्स में क्या आते हैं? स्वीट सबस्टेंस, बैक्टीरिया इनसाइड द माउथ आफ्टर टेकिंग मिल्क। खाने के बाद यदि हमने प्रॉपर्ली उसको क्लीन नहीं किया तो ये सैकेराइड और फूड पार्टिकल्स दांत में फंसे रहते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया जनरेट होती है, और वो बैक्टीरिया माउथ के अंदर का पीएच को डिक्रीज करता है। इट डिक्रीजेस द पीएच इनसाइड द माउथ, हेंस डेकेड ऑफ टीथ टेक, जिसके कारण टीथ का डेके होता है। हमें टू प्रोटेक्ट आवर टीथ, गुड हैबिट शुड बी फॉर्म, अपने आप ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। टू क्लीन द टीथ आफ्टर टेकिंग मील्स, खाने के बाद हमें दांत को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। जो टूथ पाउडर या टूथपेस्ट हम यूज कर रहे हैं उसमें वो बेसिक नेचर का होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे माउथ के अंदर एसिड बनता है, तो बेसिक नेचर का होगा तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रलाइज कर देगा, तो बेसिक नेचर का, दे न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस इनसाइड द माउथ एंड प्रोटेक्ट टीथ फ्रॉम डेके। तो हमें गुड क्वालिटी के टूथ पाउडर
या टूथपेस्ट लेने चाहिए जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट ज्यादा हो। सेकंड में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल। सॉइल हमारा जो है वो एक बहुत बड़ी हमारी प्रॉपर्टी है, ऐसा समझ, नेचुरल प्रॉपर्टी है। उसी में से हम हमारे फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो करते हैं। The soil whose pH is between 6.5 to 7, ये हमारी जो सॉइल है ये रेंज का, इसमें ग्रोथ सर्व्स का प्रॉपरली होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपरली होता है, यानी इस रेंज पर हमारी जो क्रॉप्स है वो ग्रो हो सकती है। सर्व गुड। द सॉइल हैविंग पीएच वैल्यू लेस देन 6.5, जिस सॉइल का पीएच वैल्यू 6.5 से होगा वो उसको हम एसिडिक सॉइल बोलते हैं। और एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड उसमें सॉइल के साथ में मिक्स कर देते हैं फार्मर, जिसके कारण वो सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाती है, और न्यूट्रलाइज हो जाती है उसमें क्रॉप्स प्रॉपर ग्रोथ होता है। यदि इफ pH ऑफ द सॉइल इज मोर देन 7.3 से ज्यादा यदि pH सॉइल का हो रहा है तो उसको हम बेसिक सॉइल बोलते हैं, that is called the basic soil, and gypsum is added, gypsum उसमें ऐड किया जाता है। ये जिप्सम इज एडेड, जिप्सम को ऐड करते हैं। जिप्सम उस बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है और न्यूट्रलाइज करके एसिड कॉमन बना देता है। देयर जिसका रिजल्ट होता है देयरफॉर द क्रॉप्स टेक प्लेस प्रॉपर ग्रोथ, का क्रॉप्स का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होता है। तो in this way, if we are able to determine the pH value of any particular substance, then development and protection both take place properly. Next topic is importance of pH in honeybee bite. Last topic according to our textbook. Importance of pH. The importance of pH honeybee bite or ant bite. We know that when red ant or honeybee bite us, then we feel pain and irritation. Sometimes we feel swelling also inside of our body. Its reason is this, because when they bite us, then they sting. And that sting contains an acid. When ant bite take place, then it release an acid called formic acid, and formic acid, its chemical formula is HCOOH. And when honeybee bite take place, then it release an acid known as a melatonin. Melatonin contains a 26 amino acid. 26 amino acid are there in melatonin. Because of this, we feel more pain when we bite by the honeybee. So both honeybee bite and ant bite both release the acid. Because of that we feel pain, irritation and swelling. Then to neutralize acid, one should take a basic nature substance, and under the basic nature there is more applicable or more suitable substance is baking powder. Then we should rub or apply an aqueous solution of baking powder in the place of bite or around the place of bite. Therefore, we will able to get relief from pain, irritation and swelling. Bite of ant and honeybee acidic nature. The substance which are added to poison are formic acid by ant and melatonin by honeybee. Which is present in sting of the honeybee. Melatonin is present in the sting of honeybee. Sometimes sting is also released or leave by the honeybee inside of our body. To get relief, an aqueous solution of basic substance like
baking powder. NaHCO3 is baking powder. Should be applied around the place of bite. जो आपको क्या करेगा, बेसिक नेचर का है तो न्यूट्रलाइज कर देगा, और जब हमारा एसिडिक न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमें पेन से रिलीफ मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी. एसिडिक पॉइजन एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम पेन, एरिएशन एंड स्वेलिंग. सबसे स्वेलिंग भी जो है ना वो भी हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाता है. सो इस इन दिस वे we can get relief, and this is the importance of pH. because acid होता है तो हमारी बॉडी का जो रोल है कितना था, 7 से 7.8, तो ये 7 से नीचे आ जाता है, यानी एसिडिक नेचर का हो जाता है, और उसके कारण हमको पेन होता है. तो इन दिस टॉपिक वी हैव लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ pH, and next topic we will learn in next session. Thank you and have a nice day.